Hello everyone, how are you all doing? Welcome back to your computer class. Today we are going to start with a new chapter from your book Computer Connect Class 2 Green Apple Series by Wisdom Publications. So let's begin with the new chapter today. I hope you all are ready. So now let's begin with chapter 7, which is Coding with Scratch Junior. So let's understand this chapter well, and I hope you all are ready. So first is the introduction. Scratch Junior is a coding platform that helps you to create interactive stories and games using blocks of code. Scratch Junior एक ऐसा कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपने चॉइस के गेम्स या फिर अपने चॉइस की स्टोरीज को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कोड्स. ठीक है, अब चलिए इस चैप्टर को हम डिटेल में देखेंगे और समझेंगे. Hina, do you remember how we used Scratch Junior in our last class to make characters dance and tell stories? Yes, Meera, it was interesting. Well, in this chapter, we are going to explore even more funny things we can do with Scratch Junior. I can't wait, Meera. Let's get interactive with it. Absolutely, Hina. There are so many adventures we can create with Scratch Junior. So now let's dive into the world of Scratch Junior. Opening the Paint Editor window. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमें पेंट एडिटर विंडो को ओपन करना है Scratch Junior में तो हम कैसे करेंगे. With the help of Paint Editor window of Scratch Junior, we can paint a new character or a background. It means that you can draw your own character and backdrop. You can also use it to modify an existing character. तो आप पेंट एडिटर विंडो से क्या कर सकते हैं, एक नया बैकग्राउंड या फिर एक नए कैरेक्टर को एडिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर जो स्क्रैच जूनियर में है, अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप उस विंडो में वो चीज़ भी कर सकते हैं. इट्स योर चॉइस. ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू ओपन द पेंट एडिटर विंडो? वी विल लर्न दैट. First, we have to click the paint icon present on the top of Scratch Junior window. With different tools that help to paint a character, the paint editor appear as shown below. तो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, पेंट आइकन को क्लिक करना है जो Scratch Junior विंडो की कौन सी साइड, टॉप साइड पर आपको प्रेजेंट मिलेगा. How you will do it? It is given in the pictures also. So let's see. Here it is. So how you can do it? It is given here. See, to draw different shapes such as line, circle, rectangle or triangle. ये वाला आइकन आप ट्रायंगल, सर्कल, लाइन या फिर रेक्टेंगल ये सब बनाने के काम करते हो. ये जो कलर्स हैं या के क्या काम आएंगे, अगर आपको अपने कैरेक्टर में कलर फिल करना है या फिर बैकग्राउंड में कलर फिल करना है तो आप ये कलर्स यूज कर सकते हैं. देन टू फिल अ कैरेक्टर और शेप विद द सिलेक्टेड कलर, और हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर से अपने कैरेक्टर को इस तरीके से कलर कर सकते हैं. सो ऑल दिस यू कैन डू इन द पेंट एडिटर विंडो. नाउ टू सेव द चेंजेस मेड टू अ कैरेक्टर और शेप, टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स सच एज लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, क्लिक टू सेलेक्ट कलर्स फॉर ड्रॉइंग एंड फिलिंग इन शेप्स. आप जैसे ही कलर को सिलेक्ट करेंगे और अपने कैरेक्टर के अंदर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर कलर आपने फिल किया है वो आपके कैरेक्टर में आपको प्रेजेंट हुआ दिखेगा एंड योर कैरेक्टर विल लुक मॉडिफाइड. नेक्स्ट, टू फिल अ कैरेक्टर और शेप विद द सिलेक्टेड कलर. नाउ वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ अ कैरेक्टर. अभी हमने सीखा हम पेंट एडिटर विंडो कैसे यूज करते हैं. अब हम देखेंगे एक कैरेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं हम स्क्रैच जूनियर में. With the help of various shapes given in the paint editor, we can draw a character. हम कैरेक्टर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं by using various shapes. डिफरेंट शेप्स को यूज कर हम कैरेक्टर्स को ड्रॉ कर सकते हैं. Now learn to create a face using a circle and a triangle. अब हम सीखेंगे कि एक फेस कैसे बनाएंगे हम स्क्रैच जूनियर में by using different shapes and what? Shapes and patterns like shapes such as triangle, circle and all that. So let's see. Steps to draw character are as follows. अगर हम चाहते हैं कि हम कोई कैरेक्टर बनाए, ठीक है, तो उसके स्टेप्स क्या हैं? The steps are given here. We will now read the steps.
क्लिक द शेप टू बी यूज्ड फॉर ड्राइंग, हम सबसे पहले वो शेप सिलेक्ट करेंगे जो हमें ड्राइंग के लिए यूज़ करनी है. देन वी हैव टू सिलेक्ट द थिकनेस ऑफ द लाइन टू ड्रॉ, जो भी लाइन की थिकनेस आप चाहते हैं हो उसको सिलेक्ट करेंगे. एंड देन what you have to do, the third step is click a color to use for drawing or filling. जो भी आपको कलर चाहिए आप उस कलर को चूज करेंगे, ठीक है, whatever color. Fourth step is select the fill tool and click inside a closed shape. उसके बाद क्या करेंगे, जो भी closed shape आपने यहाँ बनाई है, ठीक है, कलर सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इस शेप के अंदर क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर कलर इस तरीके से इसके अंदर जो शेप है वो उसके अंदर फिल हो जाएगा. सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपकी शेप है ना वो क्लोज्ड शेप हो, ऐसे खुली हुई शेप ना हो. इट शुड बी अ क्लोज्ड शेप लाइक दिस. ओके, हाउ? इट शुड बी अ क्लोज्ड शेप लाइक दिस. ओके, ग्रेट. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी हैव टू टाइप द नेम ऑफ द कैरेक्टर. उसके बाद आपको कैरेक्टर का नाम टाइप करना है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या नाम दिया है कैरेक्टर का, जोकर. सो आप जो भी बना रहे होंगे आप यहाँ पर टाइप करेंगे. ओके, द नेम ऑफ द कैरेक्टर. एट लास्ट सेव योर कैरेक्टर, एंड लास्ट में जब आपका कैरेक्टर रेडी हो जाए आप अपने कैरेक्टर को सेव कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ अ कैरेक्टर. क्लिक अनडू टू कैंसिल एनी एक्शन डन बाय मिस्टेक. अगर आपने कोई भी एक्शन या कोई भी ऐसा स्टेप कर दिया जो गलती से हो गया तो आप अनडू ऑप्शन दबा सकते हैं. एंड अगर आप जो आपने अनडू किया है उसको वापस अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप रीडू दबाएंगे. क्लिक रीडू टू रिवर्स द एक्शन ऑफ अनडू. अगर आप अनडू वाले एक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप रीडू ऑप्शन चूज करिए. Okay, now moving ahead to the activity. This activity is for you. What you have to do, you have to paint a character using different tools of the paint editor window. आप Scratch Junior में ये सारे steps perform करिए and you will be able to understand the above topics better. Why? Because अगर आप कोई चीज़ खुद try करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. Great. Now we are going to learn about executing actions in scripts. When a script should execute, it can be decided by triggering blocks. तो example 1 में हम देखेंगे कि अगर आप एक स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे. ये स्क्रिप्ट है किसके बारे में? To make a communication between the dog and the girl. ओके, तो आप देख सकते हैं बच्चों ये जो नीचे है ना ये है सब ट्रिगरिंग ब्लॉक्स. इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिगरिंग ब्लॉक्स बोलते हैं. और इस विंडो में ये क्या है? ये एक कैरेक्टर है, ये ग्रीन फ्लैग है. आपको याद होगा हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सीखा था स्क्रैच जूनियर में. चलिए अब डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले क्या है? स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग. ब्लॉक कैसा होगा ग्रीन फ्लैग का? ऐसा होगा, मैंने आपको ऊपर दिखाया. इट इज क्लिक टू स्टार्ट द स्क्रिप्ट. अगर आप स्क्रिप्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ग्रीन फ्लैग बटन को प्रेस करेंगे. देन स्टार्ट ऑन टैब. उसके बाद आपको कौन सा ब्लॉक यूज करना है? टैब ब्लॉक. इट इज क्लिक टू स्टार्ट द स्क्रिप्ट ऑन द कैरेक्टर. अगर आप कैरेक्टर पे स्क्रिप्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? आप यूज करेंगे टैब ऑप्शन. देन नेक्स्ट इज स्टार्ट ऑन बम्प. देन आपको कौन सा यूज करना है? आपको बम्प ब्लॉक यूज करना है. ओके, अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. इट इज क्लिक टू स्टार्ट द स्क्रिप्ट on a character when another character touches it. ठीक है, तो ये कब होता है हम यूज करते हैं? इसको तब यूज करते हैं जब हमें एक कैरेक्टर को स्टार्ट करना हो और जो दूसरा कैरेक्टर है उसके पास हो, उसको टच कर रहा हो. तो जब दोनों कैरेक्टर्स आ जाएं तो हम बम्प वाला यूज करेंगे. जो एक कैरेक्टर है उसे स्टार्ट करने के लिए हम टैप यूज करेंगे और स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए हम ग्रीन फ्लैग बटन या फिर ग्रीन फ्लैग वाला ब्लॉक यूज करेंगे. Okay, now next is start on message. It is click to start the script on the character when it receives a message. ठीक है, तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है start on message हम कब यूज करते हैं. नेक्स्ट क्या है? send message. It is click to send a message in a selected color to a character. तो ये लास्ट वाला send message block हम कब यूज करते हैं? When do we use it? We use it when we have to send a message in a selected color to a character. एक selected color के थ्रू अगर हम character को मैसेज भिजवाना चाहते हैं तब करते हैं. See, this is the script for you. ये पूरी स्क्रिप्ट बन के तैयार हो गई. हमने डिफरेंट ब्लॉक्स को यूज करा और स्क्रिप्ट बन गई. देखो, स्क्रिप्ट फॉर डॉग,
ये है, ठीक है। फिर स्क्रिप्ट फॉर गर्ल, वो जो गर्ल है वो डॉग को बोल रही है लेट्स प्ले, राइट। सो ये आपके लिए डॉग और गर्ल की स्क्रिप्ट दी है। डॉग की स्क्रिप्ट अलग है और गर्ल की स्क्रिप्ट अलग है। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन, हम अब स्क्रिप्ट की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। In the above script, the send message and start on message blocks have been used to show communication between two characters. तो जो send message और start on message वाला ब्लॉक है वो क्यों यूज किया गया है? वो communication show यूज करने के लिए यूज किया गया है। When you click on the dog, the script of the dog will say woof. तो जैसे ही आप डॉग पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डॉग के स्क्रिप्ट मैसेज में क्या है? वूफ है। तो वो डॉग क्या बोलेगा? वूफ। एंड पास द रेड मैसेज। एज द चाइल्ड रिसीव्स द रेड मैसेज, द स्क्रिप्ट फॉर द गर्ल सेज लेट्स प्ले। तो फिर क्या होगा? जैसे ही अगर हम अब गर्ल वाली स्क्रिप्ट देखें, गर्ल वाली स्क्रिप्ट के अंदर गर्ल क्या बोलेगी? लेट्स प्ले। तो देखो इन दोनों की अपनी अपनी क्या है? अपनी अपनी स्क्रिप्ट है। This is so interesting, my dear children. You can also try it in your app called Scratch Junior. Okay, now we will see the activity. This again is for you. आपको क्या करना है? इसके अंदर आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है Scratch Junior में, और जो आपको टास्क दिए हैं ना, इनको परफॉर्म करना है. So I think you can do it yourself. Now using motion blocks, ब्लू इन कलर, जो ब्लू कलर में आपको ब्लॉक्स मिलते हैं उन्हें मोशन ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर अपनी जगह से मूव करे, राइट मूव करे, लेफ्ट मूव करे, अप डाउन, वॉट एवर वी वॉन्ट, तो ये एक्शंस कराने के लिए हम ब्लू कलर में जो आपको ब्लॉक्स मिलेंगे जिन्हें हम मोशन ब्लॉक्स बोलते हैं उनको यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मोशन ब्लॉक है टर्न राइट। तो टर्न राइट मोशन ब्लॉक से क्या होता है? With the help of this block, the character rotates clockwise. Type the value 1, 2 for full rotation. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर रोटेट हो, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट हो, तो हम ये वाला ब्लॉक यूज करते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे रोटेट करे, तो फिर हम ये वाला ब्लॉक यूज करते हैं जिसका नाम होता है टर्न लेफ्ट। Next is hop. It helps us to move the character up and down. Again, the number is used to decide how high the character will hop. तो क्या होगा? hop ब्लॉक से हम क्या कर सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर ऐसे उछले, मतलब एक बार ऊपर हॉप करे और फिर नीचे आ जाए, तो उसके लिए हम ये वाला ब्लॉक यूज करते हैं जिसका नाम है हॉप, ठीक है। उसके बाद क्या है? गो होम ब्लॉक, ये इसका सिंबल है। इट हेल्प्स अस टू मूव द कैरेक्टर टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर अपनी इनिशियल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, तो हम गो होम ब्लॉक को यूज करते हैं। फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू सी वन मोर एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने गर्ल और डॉग की कॉन्वर्सेशन की स्क्रिप्ट बनाई थी, अब हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। सो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। अ स्क्रिप्ट to make the character move, rotate, hop and move back to its starting point. अब हम क्या स्क्रिप्ट बनाएंगे कि एक कैरेक्टर मूव करे, रोटेट करे, हॉप करे और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस से चला जाए। तो देखिए ये रही स्क्रिप्ट। सबसे पहले ये ग्रीन फ्लैग क्यों यूज करते हैं हम? स्क्रिप्ट को शुरू करने के लिए। उसके बाद क्या आया? मूव टूवर्ड्स राइट आया, फिर क्या आया? उसके बाद आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, फिर क्या आया? फिर हॉप आया और फिर गो होम आया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट की एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इस जो स्क्रिप्ट है ना बच्चों, इसके अंदर सबसे पहला मैंने आपको बताया ग्रीन फ्लैग है, आपको समझ आ गया होगा। फिर क्या है कि ये एरो है, मतलब कैरेक्टर राइट की तरफ मूव करेगा। कितने स्टेप्स मूव करेगा? 3 स्टेप्स मूव करेगा। देखिए क्या लिखा है? द अबव स्क्रिप्ट विल मेक द कैरेक्टर मूव 3 स्टेप्स टू द राइट। 3 स्टेप्स चलेगा वो टूवर्ड्स द राइट, ओके। फिर क्या होगा? फिर जो हमारा कैरेक्टर है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा? फिर 4 टाइम्स वो जंप करेगा, ठीक है। लिखा है ना यहाँ पे 4 टाइम्स कैरेक्टर हॉप करेगा और फिर वो अपनी इनिशियल पोजीशन, मतलब जो उसकी सबसे पहले पोजीशन थी, इस वाले स्टेप से पहले जो पोजीशन थी उस पर वापस आ जाएगा।
तो ये इस एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन थी। ऐसे ही आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी, आपको उन्हें समझना आना चाहिए। इट्स वेरी इजी, आपको बस ब्लॉक को रिकॉग्नाइज करना है और नीचे का नंबर देखना है। ओके, नाउ अगेन द एक्टिविटीज फॉर यू। आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है स्क्रैच जूनियर में। नाउ वी विल लर्न टू कंट्रोल द कैरेक्टर। ठीक है, अब अगर हमें देखना है, अगर हमें सीखना है कि हम अपने कैरेक्टर्स को कंट्रोल कैसे करें, ऑरेंज इन कलर, तो वो सारे ब्लॉक्स ऑरेंज कलर में आपको दिखेंगे अगर आपको अपने कैरेक्टर को कंट्रोल करना है। जैसे उसकी स्पीड कंट्रोल करनी है, कैरेक्टर को रिपीट करना है, वॉट एवर ऑफ योर चॉइस, वो आपको ऑरेंज कलर में दिखेंगे। तो कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले है सेट स्पीड, ये रहा वो ब्लॉक, सेट स्पीड ब्लॉक। It is used to change the speed at which a character performs actions. The speed can be set to slow, medium or fast. आप अपने हिसाब से अपने कैरेक्टर की मूवमेंट स्पीड को सेट कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपका कैरेक्टर फास्ट मूव करे तो फास्ट, मीडियम तो मीडियम और लो तो लो, आपकी चॉइस है। फिर उसके बाद क्या है, एक और ब्लॉक है जिसका नाम है रिपीट। It runs the blocks inside it multiple times. It runs the blocks inside it. जो blocks उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको रन मल्टीपल टाइम्स रन कराने के काम आता है ये वाला ब्लॉक। ओके, नाउ अगेन वी हैव अ स्क्रिप्ट इन एग्जाम्पल 3। इसको देखते हैं। अ स्क्रिप्ट टू मेक द कैरेक्टर मूव, रोटेट, हॉप एंड मूव बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट फॉर 4 टाइम्स। ठीक है, तो हम ये चीज 4 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। तो देखो इसका ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट है वो तो हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही है, पर जो इसके अंदर ये वाला पार्ट और ये ऐड हो गया ना, ये अलग है। आओ मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले ग्रीन फ्लैग, मतलब हमारी स्क्रिप्ट स्टार्ट हो चुकी है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पीड सेट हुई है। ओके, स्पीड हमने सेट कर दी अपने कैरेक्टर की। उसके बाद क्या है, हमारे कैरेक्टर को क्लॉकवाइज रोटेट करना है फॉर 6, मतलब 6 जो भी आप नंबर दोगे वो उस हिसाब से करेगा। इट इज योर चॉइस। फिर उसके बाद क्या होगा, आफ्टर रोटेटिंग क्लॉकवाइज, फिर 2 टाइम्स जो कैरेक्टर है वो हॉप करेगा, अप एंड डाउन इस तरीके से हॉप करेगा 2 टाइम्स, एंड देन इट विल मूव टू द इनिशियल पोजिशन, जो उसकी सबसे पहले पोजिशन थी वहां पहुंच जाएगा इस स्टेप में। लास्ट स्टेप का मतलब क्या है, जो इस तरीके का एरो बना हुआ है, इसका मतलब है रिपीट, कि ये जो पूरी स्क्रिप्ट है ना ये 4 बार रिपीट होगी। क्यों 4 बार होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा है। तो दिस स्क्रिप्ट विल रिपीट 4 टाइम्स। अगर यहाँ लिखा होता 5 तो 5 टाइम्स कर सकते थे, 6 होता तो 6 टाइम्स। इट इज योर चॉइस। तो इस तरीके से ये स्क्रिप्ट आपको दी है। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन भी। द अबव स्क्रिप्ट विल मेक द कैरेक्टर मूव फास्ट, टेक अ टर्न, हॉप एंड गो बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, दिस एक्शन विल बी रिपीटेड 4 टाइम्स। मैंने आपको बताया ये एक्शन कितनी बार रिपीट होगा, 4 टाइम्स रिपीट होगा। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ अगेन, अब आपको मुझे लगता है और अच्छे से समझ आएगा और आप एक्टिविटी को और अच्छे से कर पाएंगे। एक और एक्टिविटी है आपके लिए, आपको स्क्रिप्ट को रन करना है पहले अपने स्क्रैच जूनियर में, और फिर वो आपको बताना है कि आउटपुट क्या आया आपका, और आपको डिफरेंशिएट करना है पहले वाला आउटपुट इसमें और जो नया आउटपुट आप बनाएंगे उसमें। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, तो यू हैव टू ट्राई दिस एक्टिविटी योरसेल्फ। नाउ चेंजिंग द अपीयरेंस यूजिंग लुक्स ब्लॉक्स। अगर आप अपने कैरेक्टर की अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं तो आप लुक्स ब्लॉक्स यूज करते हैं जो पर्पल कलर के होते हैं। सी, दीज आर योर ब्लॉक्स इन पर्पल कलर। ओके, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉक की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या है, ग्रो। इट इंक्रीजेस द कैरेक्टर साइज। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरेक्टर थोड़ा बड़ा दिखे, साइज में थोड़ा बड़ा दिखे, तो हम कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ग्रो ब्लॉक। नेक्स्ट क्या है, श्रिंक। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर जितना साइज उसका है उससे छोटा अपीयर करे, तो हम कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे, श्रिंक ब्लॉक यूज करेंगे। इट डिक्रीजेस द कैरेक्टर्स साइज। नेक्स्ट इज रीसेट साइज। और अगर हम क्या करना चाहते हैं, अपने कैरेक्टर को उसकी ओरिजिनल किस पे भेजना चाहते हैं, ओरिजिनल साइज पर भेजना चाहते हैं, तो हम रीसेट साइज वाला ब्लॉक यूज करते हैं। सो दीज आर द 3 पर्पल ब्लॉक्स जो आपको दिखाए गए हैं, ग्रो, श्रिंक एंड रीसेट।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर हम ये वाले ब्लॉक्स को यूज करेंगे। अ स्क्रिप्ट टू मेक द कैरेक्टर ग्रो इन साइज। तो हम एक स्क्रिप्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर कैरेक्टर का साइज इंक्रीज करके हम दिखाएंगे। तो देखो ये रही स्क्रिप्ट आपके सामने। सो दीज आर टू स्क्रिप्ट, एक विजर्ड की स्क्रिप्ट है और एक फ्रॉग की। दोनों स्क्रिप्ट्स को अब हम समझेंगे। एक्सप्लेनेशन इज हियर। द अबव स्क्रिप्ट विल मेक द कैरेक्टर विजर्ड से माई मैजिक स्पेल विल मेक यू बिग। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट हुई है, मैसेज क्या दे रहा है विजर्ड? मैसेज दे रहा है कि माई मैजिक स्पेल विल मेक यू बिग। और किसको दे रहा है ये मैसेज? फ्रॉग को दे रहा है। एंड देन पास अ मैसेज टू द फ्रॉग। अब देखो ये मैसेज किसके पास पास हो गया? फ्रॉग के पास। ठीक है, अब फ्रॉग के पास ये मैसेज आ गया, ये रहा। एंड देन पास अ मैसेज टू द फ्रॉग एंड देन द फ्रॉग विल ग्रो इन साइज। और जैसे ही ये मैसेज विजर्ड भेज देगा फ्रॉग को, तो फ्रॉग साइज में इस तरीके से ग्रो हो जाएगा। ये हमने कौन सा ब्लॉक यूज करा? हमने ग्रो ब्लॉक यूज कर दिया। सो इस तरीके से आपको देखना है, अपनी स्क्रिप्ट को समझना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ब्लॉक्स है ना, हर ब्लॉक का मतलब आपको पता होना चाहिए। ग्रेट। नाउ अगेन देयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू। ये एक्टिविटी भी आप खुद से ट्राई करेंगे बिकॉज दिस इज फॉर यू एंड यू हैव टू ट्राई इट इन योर कंप्यूटर। यू कैन डू दिस वन योरसेल्फ। ओके, नाउ एडिंग साउंड्स यूजिंग साउंड ब्लॉक्स। अब हमारे पास साउंड ब्लॉक्स भी होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने कैरेक्टर्स को कुछ आवाज दे सकते हैं, साउंड दे सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला क्या है? प्ले रिकॉर्डेड साउंड। तो इसके लिए ये वाला ब्लॉक यूज होता है अगर हम रिकॉर्डेड साउंड को प्ले कराना चाहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? इट प्लेज अ साउंड रिकॉर्डेड बाय द यूजर। जो भी यूजर है अगर उसने कोई साउंड रिकॉर्ड करके रखी है और वो उसी साउंड को अपने कैरेक्टर से रिपीट कराना चाहता है या फिर बुलवाना चाहता है, तो आप कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे? प्ले रिकॉर्डेड साउंड ब्लॉक यूज करेंगे। फाइन। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू रिकॉर्ड अ साउंड? ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि साउंड रिकॉर्ड करने के स्टेप्स क्या होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट क्लिक ऑन द साउंड ब्लॉक। जो साउंड ब्लॉक है सबसे पहले आप उस पर क्लिक करेंगे। ये रहा साउंड ब्लॉक। नाउ क्लिक ऑन द आइकन। सब उसके बाद जो ये आइकन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग द साउंड क्लिक ऑन दिस बटन। रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए इस बटन को आपको क्लिक करना है। नाउ आप जो भी रिकॉर्ड करेंगे, जो भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए ये वाला बटन दबाएंगे। ठीक है, फिर विद द हेल्प ऑफ दिस बटन वी लिसन टू द रिकॉर्डिंग। अगर हमें रिकॉर्डिंग को सुनना है तो हम ये बटन दबाएंगे। ठीक है, एंड सिक्स स्टेप में आपको क्या करना है? आपको अपनी रिकॉर्डिंग को सेव कर देना है। ये जो टिक का ऑप्शन आ रहा है इससे आपकी रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल इज हेयर फॉर यू। अ स्क्रिप्ट टू मेक अ कैरेक्टर प्ले अ रिकॉर्डेड साउंड एंड देन परफॉर्म एन एक्शन। अगर हम अपनी स्क्रिप्ट से एक रिकॉर्डेड साउंड को बुलवाना चाहते हैं तो उसके क्या स्क्रिप्ट है वो देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ये रही वो स्क्रिप्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्क्रिप्ट की। द अबव स्क्रिप्ट विल मेक द कैरेक्टर प्ले द रिकॉर्डेड साउंड, जंप and then the character will hop in its own place। तो क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले कैरेक्टर जो रिकॉर्डेड साउंड है वो बोलेगा, फिर वो हॉप करेगा एंड जो स्क्रिप्ट है वो स्टॉप हो जाएगी। अपनी प्लेस पर ही वो 5 टाइम्स हॉप करेगा क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा है। A new activity, again you have to try। I am requesting you, please try all the activities because जब आप activities करेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा और आप enjoy भी करेंगे। Okay? Now, script for chicken। ये आपके लिए एक script दी गई है, आपको इस script को अच्छे तरीके से पढ़ना है। सी ये जो प्रोजेक्ट है ना, आपको जो दिया है इसकी स्क्रिप्ट यहाँ पर आपके लिए दी गई है। तो आप क्या कर सकते हैं? इस स्क्रिप्ट की हेल्प से आप ये एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। ओके, नाउ एडिंग पेज टू अ प्रोजेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा पेज हो, ये एक पेज है, आप चाहते हैं एक और पेज हो, तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो टू एड अ न्यू पेज, एक नया पेज ऐड करने में आप कैसे करेंगे? एक नया पेज ऐड करना अब हम वो सीखेंगे। ठीक है, यू कैन इजीली ऐड पेजेस टू योर प्रोजेक्ट
These pages can be used to build up a story with different characters in it, and it can be connected together using go-to-page block. You can add up to 4 pages to a project. आप एक प्रोजेक्ट में ना 4 पेज ऐड कर सकते हैं. कितने पेज ऐड कर सकते हैं? 4. Now let's read the steps. First one is, on the right side of the window, click on the given option. A new page gets added. You can add another backdrop and character. तो आप जैसे ही एक नए पेज को ऐड करेंगे, आपके सामने एक नई विंडो खुल के आ जाएगी और आप उसके अंदर एक बैकड्रॉप डाल सकते हैं, एक नया कैरेक्टर डाल सकते हैं. It is your choice. Okay, so this is how you can add. See, you can use the plus sign and आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा. अब ये टिप पढ़ते हैं. You can copy a character already added in your project to another page. Just drag it to the thumbnail of that page. अगर आप चाहते हैं कि सेम कैरेक्टर 2 पेजेस में सेम कैरेक्टर आए, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट पेज में कोई कैरेक्टर ऐड किया हुआ है, आपको सेकंड पेज में भी वही कैरेक्टर चाहिए, तो आप उसको वहां से उठा के ड्रैग करेंगे और दूसरे पेज के अंदर ले आएंगे तो वो वहां भी आ जाएगा. सो इट्स वेरी इजी. यू कैन ट्राई इट प्रैक्टिकली. नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग एंड ब्लॉक्स. जो ब्लॉक्स हम अपनी स्क्रिप्ट को एंड करने के लिए यूज़ करते हैं, वो कौन से ब्लॉक्स होते हैं? वो ब्लॉक्स रेड कलर में होते हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे. फिर यहाँ पर ब्लॉक के नेम्स पढ़ते हैं. सबसे पहले क्या है? रिपीट फॉर एवर. ये इसका सिंबल होता है, ये ब्लॉक साइन होता है. इट हेल्प्स अस टू रन द स्क्रिप्ट कंटिन्यूसली. अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट कंटिन्यूसली रन करती जाए, उसके लिए हम रिपीट फॉर एवर ब्लॉक यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, गो टू पेज 2. देखो यहाँ पे लिखा है ना 2. नेक्स्ट पेज पर या सेकंड पेज पर जाने के लिए हम क्या करते हैं? कौन सा ब्लॉक यूज करते हैं? गो टू पेज 2. इट हेल्प्स अस टू चेंज द पेज ऑफ द प्रोजेक्ट. अगर हमने चेंज करना है पेज अपने प्रोजेक्ट का तो हम ये वाला ब्लॉक यूज करेंगे. नाउ व्हेनेवर यू हैव मोर देन 1 पेज इन अ प्रोजेक्ट, you can connect the pages by using the go to page blocks. When the go to page block turns to a page, any script on that page with a green flag will automatically run. इसको एक example की help से समझते हैं. A script to make a character move from one page to another. अगर हम चाहते हैं कि एक character जो है, for example ये character, ये मेरा page 1 है, page 1 पे character present है. अब मुझे चाहिए ये character page 2 पे भी आ जाए, तो हम क्या script use करेंगे? आओ ये समझते हैं. यहाँ पर देखो क्या स्क्रिप्ट है कि ये स्टार्ट होगा, राइट मूव करेगा 10 स्टेप्स और सेकंड पेज पर अपीयर हो जाएगा. इट विल गो टू सेकंड पेज. तो हमने ये देखो गो टू ब्लॉक यूज करा है. राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट पेज ऑल्सो वी हैव अ स्क्रिप्ट. तो अब हम स्क्रिप्ट की एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं. The above scripts will make the character move forward 10 steps and then move to the second page. कि जो फर्स्ट पेज का कैरेक्टर है वो 10 स्टेप्स चलेगा आगे और फिर क्या होगा? वो सेकेंड पेज पर आ जाएगा. द कैरेक्टर ऑन द सेकेंड पेज विल मूव 10 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड देन गो टू द पेज 1. और फिर क्या होगा? सेकेंड पेज पर आके भी वो 10 स्टेप्स चलेगा और वापस पेज 1 पर चला जाएगा. देखो यही लिखा है ना कि सेकेंड पेज पे की क्या स्क्रिप्ट है. यहाँ पर पहले ग्रीन फ्लैग दिया है, फिर 10 स्टेप्स चलेगा टूवर्ड्स द राइट, 10 स्टेप्स चलेगा राइट साइड में और फिर वापस से पेज 1 पर चला जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द गो टू पेज ऑप्शन, गो टू पेज ब्लॉक. ओके, सो मूविंग अहेड. सो नाउ लेट्स सी दिस नो द फैक्ट. इसके अंदर ये लिखा है कि आप अगर चाहते हैं कि कोई कैरेक्टर डायगनली मूव करे तो आप स्क्रैच जूनियर में वो भी कर सकते हैं. So that's the end of the chapter. First, we'll revise whatever we have studied and then move on to the exercises. With the help of Paint Editor window of Scratch Junior, we can paint a new character or a background. Scratch Junior library includes a set of characters with blank faces. You can use the camera tool to capture a photo and use it to fill the blank faces or any part of your drawing. To rotate the character, we use the rotate tool. ये मैंने आपको बताया था. To make the copy of the character, we use duplicate tool. To move the character, we use drag tool. Great. Now let's go and move on to the exercises. Tick the correct option to complete the statements.
You can connect multiple pages in a Scratch Junior project by using the option Go to Page. Dash is used to move a drawing to another position in a Paint Editor window. So the answer for the second one is what? It is this option, the third option. इस वाले ब्लॉक से आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी ड्राइंग को एक दूसरी पोजीशन में मूव कर सकते हैं. Then next, dash pages can be added to a Scratch Junior project. 4 pages. Okay. Next is the fourth one. Dash button will be used to record a sound. So it is the second option. The dash block category contains blocks that can draw a character, shrink a character or reset the size of the character. The dash block category कौन सी category है? The looks block category. Okay. Now let's do the answer to the following questions. Which block is used to decrease the size of the sprite? So this is the shrink block. Which block rotates the sprite clockwise to specified amount? It is the turn right block. Okay. Moving ahead to the competency based questions. In this you have some tasks. Okay. ये आपको कुछ टास्क दिए हैं, आपको इसको स्क्रैच जूनियर पे परफॉर्म करना है, ठीक है? एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय दीज टास्क्स. आई होप यू विल डू इट. ओके, नाउ लेट्स डू दिस एक्टिविटी. वी हैव दिस एक्टिविटी जोन विद अस. क्लिक द करेक्ट प्रोग्राम. सबसे पहला प्रोग्राम क्या है? मूव राइट, जंप एंड से वेलकम. तो कौन सा वाला सही है? देखो ये राइट चला, वेलकम बोला, फिर जंप करा, ये गलत है. इसके अंदर क्या है? पहले राइट चला, फिर हॉप किया, मतलब जंप किया और फिर वेलकम बोला. तो ये वाला सही है, तो हम इसको टिक कर देंगे. जंप ट्वाइस देन मूव राइट 6 स्टेप्स एंड से हाई. तो कौन सा वाला सही है? हमें ट्वाइस जंप कराना है, देन मूव करना है राइट साइड 6 स्टेप्स. ओके, एंड देन से हाई. तो ये रहा, 2 बार जंप कराया, फिर राइट मूव करे और हाई. तो ये रहा सही ऑप्शन. हॉप से बाय, हॉप एंड से बाय. तो क्या करना है? पहले हॉप करना है, फिर बाय बोलना है, फिर हॉप करना है, फिर बाय बोलना है. तो ये वाला सही है. इसके अंदर इस पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो हॉप नहीं कर रहा, वो ऊपर जा रहा है, पर हमें हॉप कराना है. तो दिस वन इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स डू द मैच द फॉलोइंग. Column A and column B, both columns are there. We have to match them. So first one is the plus sign. For the plus sign, how we will connect it, how we will match it. Plus sign किस चीज के लिए यूज होता है? Create new करने के लिए. तो हम इन दोनों को मैच कर देंगे. Second one is the sprite. Sprite को हम कैरेक्टर भी बोलते हैं. तो देखिए ये कैरेक्टर, ये sprite को हमने यहाँ पर इससे ज्वाइन कर दिया sprite with the right answer. Next is green flag. So we have matched it. Then we have the stop button. This orange one is the stop button. Next is the landscape. Landscape किस चीज के लिए होता है? Backdrop, background ऐड करने के लिए. फिर क्या है? फिर है text. So these were the match the following. Next we have this let's enhance our learning activity. यह एक्टिविटी आपको खुद करनी है स्क्रैच जूनियर पर, जिसके अंदर आपको एक स्टोरी को क्रिएट करना है, द सन एंड द प्लैनेट्स. स्टेप्स आर गिवन हियर फॉर यू. आपको ये स्टेप्स को फॉलो करके अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है. ऑलराइट, ग्रेट. आई एम श्योर यू विल एंजॉय द एक्टिविटी. So that's it for this chapter. I hope you enjoyed it and understood the chapter well. Thanks for watching. We'll meet in the next one now. Until then, goodbye and take care.